ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਹੋਏ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, IAS, SSP ਗੁਰਲੀਨ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ, IPS, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਮੀਨਾ, IPS, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ, SP ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, SDM ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, DSP ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਤੇ ਟਾਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਗਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬਾਗਨ ਦੇ ਨਗਰ ਨਗਰ कर रहे हैं की बस को उठना नगर की अगले पहले पहलेगा वाहे जी का खालसा वाहे जी की फतेह। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
महान नगर कीर्तन ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ गुरु के महल तो ਸਭ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा विखे जाके ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਸੰਨ 1675 ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਥੋਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ ਆਗਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੱਸਾ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਗਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਤਾ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਹੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੋਤੇ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜੀਓ ਸਭੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ। आज पीछे आ चुनौती है कि वास्तव में जिन्होंने और विशेष कर गुरु गोविंद सिंह ने एक विशेष पहचान दी है ना, ये जो खालसा पंथ का निर्माण किया, ये धर्म की रक्षा के लिए हुआ। दुर्भाग्य यह है कि आज लोभ और लालच के कारण से कई लोग जो है ना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन में ड्रेस परिवर्तन नहीं है, नाम परिवर्तन नहीं है, पर अपनी श्रद्धा का परिवर्तन है। अगर व्यक्ति की श्रद्धा का परिवर्तन होगा तो कभी न कभी देश परिवर्तन भी स्वाभाविक उसमें से खड़ा हो जाएगा। तो इस चुनौती को किसी एक जगह की चुनौती नहीं मानना चाहिए, हम सब लोगों को मिल करके उसके खिलाफ वातावरण बनाना चाहिए। एक रिलीजियस इंटॉलरेंस जो बढ़े यार सबसे पहले तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे जिसके कारण से ऐसी पवित्र धरती पर और ऐसे बलिदानी गुरु को माथा टेकने का मेरा भी सौभाग्य मिला। मैं सोचता हूँ कि गुरु तेज बहादुर का जो बलिदान हुआ चांदनी चौक में, वो दुनिया को एक तरह से आश्चर्य में डालने वाला है। और केवल बात क्या थी, कश्मीर के पंडितों ने आकर के कहा था कि हमको या तो धर्म परिवर्तन करना है या हमें मृत्यु को स्वीकार करना है। अब ये आप ही रक्षा कर सकते हो। तो गुरुजी थोड़ा सोचने लगे उनकी बात पर। तब तो गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। 9 साल के बच्चे ने कहा कि धर्म पर बलिदान होना तो सबसे पुण्य काम है, इससे कोई पुण्य काम हो नहीं सकता, और इसके लिए आपसे योग्य व्यक्ति और कौन होगा। तो एक तरह से पिता को भी
धर्म की रक्षा के लिए एक छोटा सा बालक इस बात की प्रेरणा देता है, तो गुरु ने उसी समय तय करके और वो यहाँ से रवाना हुए। आज की तारीख पे ही रवाना हुए, वो भी 11 जुलाई थी। वो मतलब 1675 की जुलाई थी। तो उसके बाद जाकर के जिस प्रकार के उन्होंने दरबार के सामने जाके कहा, उन्होंने कहा न हाँ, न तो हम डरते हैं न हम किसी को डराते हैं, लेकिन आपके इस डर के कारण से हम धर्म परिवर्तन करेंगे ये कभी संभव नहीं है। तो उनका चांदनी चौक में जो आजकल गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है, वहाँ मैं सोचता हूँ कि पहली बार आपने देखा होगा, दुनिया ने देखा होगा कि उनके साथी भी है ना, जिस तरह से बलिदान हुए वहाँ पर हमने देखा कि एक को जो है ना खंभे पे बांध करके जो है ना मृत्यु हो, एक को कढ़ाई में गरम तेल में डालकर, और स्वयं गुरु तेज बहादुर का एक सर जो है ना वो एक तरह से काटा गया और तो इतना जो बलिदान है, उस सर को लेकर एक बहादुर जेता जी है ना वहाँ से अपने सर पे रख करके यहाँ तक पहुँचा और यहाँ जो हुआ है, इसीलिए उस शीशगंज द्वार दरवाजे का भी यहाँ हमारे यहाँ बहुत सम्मान। तो वास्तव में गुरुओं की परंपरा ने जो कुछ किया वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं, उसके कारण से आप और हम जिंदे हैं। बाकी उस समय हमारा कहीं नामो निशान नहीं बचता। उन्होंने कम से कम हमारा नामो निशान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि आज और आप और मैं यहाँ जिंदे हैं। तो वास्तव में उस गुरु को एक तरह से आकर के मत्था टेकना अपना स्वयं का भाग्य। ये वही धरती है आप जिसकी बात कर रहे हो, लेकिन देश का जो भी व्यक्ति इधर आता है वो मत्था टेकता नहीं टेकता है। और आप लोग भी कहीं भी जाते हैं, जो भी अपने तीर्थ स्थान हैं, वहाँ जाकर के भगवान के वंदना करते ही नहीं करते हैं। तो ये देश एक था, कुछ लोगों ने इसको सीमित करने का। और जो महापुरुष होता है वो किसी ज़मीन का नहीं होता है, महापुरुष होता है वो सारे देश का होता है। जथेदार जी से अभी बातचीत हुई, कैसी मीटिंग रही, क्या बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई विशेष बात नहीं हुई। मैं तो केवल यहाँ की जो कुछ भी समस्या है और भविष्य में जो 30 नवंबर के दिन यहाँ एक बड़ा जो फंक्शन होगा, क्योंकि उनका बलिदान हुआ 26 नवंबर के दिन, और उसके बाद जो यहाँ उनका सर लेके आया, धड़ वहीं छूट गया, उसका यहाँ हुआ। तो एक बहुत बड़ा पर्व यहाँ मनाया जाता है और 350 वर्ष है। एक तस्वीर लेनी है बस आपकी यहाँ सर, पंजाब के मौजूदा हालातों के बारे में आप क्या देखते हैं? जैसे गैंगस्टरवाद हो रहा है, देखो मौजूदा हालातों के बारे में मैं सोचता हूँ कि इसके लिए हम सबको चिंता करनी पड़ेगी। किसी एक को चिंता करने से काम नहीं चलेगा। अगर चुनौती है तो हम सबको उसका मुकाबला करने के लिए अपना मन मस्तिष्क तैयार